Rahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Nadira Hamid and the lecture I am going to deliver you today is about nose. First of all, the learning objectives. The learning objectives for today's lecture are I will give you a brief introduction about the respiratory system and then we will proceed towards the nose. You will be able to know about the different parts of the nose, external nose, external nose, nasal cavity, etc. External nose, each and everything about external nose, different parts, different names given to its different areas, blood supply and nerve supply of external nose. Then we will go towards the nasal cavity. The each and everything about the nasal cavity will be studied today. I will tell you about the boundaries of nasal cavity and the blood and nerve supply of the nose, nasal cavity, and the importance of the blood supply. So this is actually a diagram showing the whole respiratory passageway. Uh, Basically, the respiratory system is divided into two parts. First of all, the upper respiratory tract, which proceed towards here, trachea. Like it includes the nasal cavity, the upper respiratory tract includes nasal cavity, then it goes like this. Here is the pharynx, this is the epiglottis, this small protrusion, and this area is the larynx below the pharynx. Then here is the larynx, and lower down the trachea starts. So when the air enters into the nasal cavity, it goes like this towards the nasopharynx, then towards the larynx here, then to trachea, and from here the lower respiratory tract starts, including the bronchi, bronchioles, the different small divisions of the bronchi, the conducting part of the respiratory system, and then at the end the air reaches to the alveoli. You may have a knowledge about the alveoli. These are the gaseous exchange areas where the actual exchange between the air, means oxygen, and blood takes place. The alveoli are covered by a rich capillary network which helps in the exchange of gases, oxygen oxygen from the lungs and carbon dioxide from the blood towards the lungs to put it into exhale it. So the respiratory system, in the whole respiratory network, the respiratory system, you will study the nose, the larynx, trachea, bronchi, the lungs, at the end the lungs, okay, and diaphragm, which is also the part of the respiratory system because it is the muscle of respiration. Okay, we will also study about this. So the upper respiratory tract from nose till here, trachea, and then lower respiratory tract, the bronchi, bronchioles, and the lungs. Okay, now proceeding towards the nose. Today's topic is about nose. The nose consists of external nose and the nasal cavity. Okay, external nose is the part which is visible to you, like this part, जो आपको सामने से नजर आ रहा है, ये सारा एक्सटर्नल नोज में है. Both the nasal cavities are divided by a septum into right and left halves. Means जो आपकी इंटरनल जो कैविटी है, जो नोज की अपनी कैविटी है, आपका एक राइट नॉस्ट्रल है और एक लेफ्ट है. सो बिकॉज द कैविटी इज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम इन सेंटर, दिस सेप्टम, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में.
This septum is dividing this whole nasal cavity into right one and the left one. एक्सटर्नल नोज के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। द एक्सटर्नल नोज हैज टू elliptical orifices. Orifice means openings, okay? These are the openings, ठीक है। जो नोज की अपनी ओपनिंग्स हैं एलिप्टिकल टाइप, ठीक है, शेप एलिप्टिकल शेप की, उसको हम बोलते हैं नेरीज या नॉस्ट्रल्स भी बोलते हैं जो लेमैन की लैंग्वेज में है, ठीक है। विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नेजल सेप्टम, जो कि हमने बात की थी। ये लेफ्ट हाफ ऑफ द नेजल कैविटी है, ये राइट हाफ है। सेंटर में ये सेप्टम है, ठीक है, ये सेंटर का सेप्टम इसको डिवाइड करता है। The lateral margin of the external nose is called ala nasal. Ala nasal, ठीक है? It is rounded and mobile. This portion, this one, ये वाला जो है, ठीक है? This is movable actually. You can move because it is flexible, made up of cartilage. So you can move this part, ठीक है? These are called ala nasal. Ala nasal, ठीक है? ये साइड वाले एरियाज को ala nasal बोलते हैं। और ये nostrils हैं, two nostrils, and in center you are having the nasal septum. So this is the these are the gross external morphological parts of the external nose. Starting from root, the root lies between the two eyebrows, like just below the forehead here, this part. When the nose gets started, this part is called root, जहाँ से शुरू होता है, ठीक है। Then going downward in a sliding manner, this portion between the two eyes is called bridge of the nose. इसको बोलते हैं bridge. Starting is root, then bridge between the two eyes, ठीक है। और ये बैक का पूरा पोर्शन जो है, दिस वन, इसको बोलते हैं डॉर्सम नेजाई, डॉर्सम ऑफ द नोज, ठीक है। रूट हो गया, ब्रिज हो गया, डॉर्सम ऑफ द नोज हो गया। देन द टिप ऑफ द नोज इज कॉल्ड एपिक्स, एपिक्स बोलते हैं टिप को, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो एरिया था इसको हमने बोला था एला नेजाई, ठीक है। ये जो मूवेबल पार्ट था ये राउंडेड एला नेजाई, ठीक है। नाउ द जंक्शन ऑफ द नोज विद द फेस, so this area, the which is the junction joining part of the nose with the face, is called nasofacial angle. Naso means nasal, nose, facial means face, nasofacial angle. And then coming downwards to this deeper area is called alar nasal sulcus, okay। sulcus is anything that is a bit deeper, okay। थोड़े से इसमें जैसे ये एला नेजाए हैं, ये फेस है, तो एला नेजाए ऐसे डीप हो रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, सल्कस सा बना रहे हैं। सो दिस इज एला, दिस इज एला ऑफ द नोज, सो एलर नेजल सल्कस, दिस इज एलर नेजल सल्कस। This is the nasal septum, okay, nasal septum in center dividing the nasal cavity into right and left part. Anterior nares mean nostril, ठीक है, ये nostrils हैं 1 2। Then philtrum, it is just above the upper lip, जो nasal septum का below जैसे एक ऐसे डिप्रेशन सा बनता है आपकी अपर लिप के ऊपर, ठीक है। This is called philtrum. So root, bridge, dorsum nasi, this is dorsum nasi, apex of the root, apex of the nose, sorry. This is nasofacial angle, alar nasal sulcus, nostrils, philtrum. The external nose, जो अगर हम स्किन को रिमूव करके देखें, so we'll come across this type of structure in the nose. Basically it is made up of bones, ठीक है, बोन से बना हुआ है और कार्टिलेज से बना हुआ है। दिस ग्रेइश पोर्शन इज होल द कार्टिलेज,
ये पूरा पोर्शन जो है, ये जिसमें मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, ये बोन्स है। तो जो रूट वगैरह बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, दिस आर एक्चुअली मेड अप ऑफ बोन्स। कौन कौन सी बोन्स है? मेड अप ऑफ मेड अप अबव बाय नेजल बोन्स, ठीक है। ये हमारे पास टू स्मॉल नेजल बोन्स है, ये एक ये वाली है और एक ये वाली है। फॉर एग्जाम्पल, एक ये बोन है नेजल, एक ये वाली है, ठीक है। दोनों आपस में जॉइंट हैं। और ये वाला पोर्शन जो है, ये हमारे पास फ्रंटल बोन है, ठीक है। फ्रंटल बोन, nasal part of the frontal bone, this nasal part of the frontal bone. So two nasal bones, ठीक है। और फिर हमारे पास ये फ्रंटल nasal part of the frontal bone है। and the third one is this one, this portion, this is the frontal process of maxilla। ये पूरी बोन हमारे पास मैक्सिलरी बोन है, ठीक है। सो उसका ये वाला पार्ट जो है, दिस वन, दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है। सो आपके पास तीन बनती हैं बोन्स, जो कि बनाती हैं ये नेजल कैविटी का, सॉरी एक्सटर्नल नोज का पार्ट, बोनी पार्ट। बोनी पार्ट में सबसे पहले आपके पास ये आता है फ्रंटल बोन, नेजल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, these two nasal bones, and frontal part of nasal frontal process of maxillary bone, maxilla का जो frontal process है वो थी। so frontal bone, nasal bones and frontal process of maxilla, ये तीन bones bony parts है, ठीक है। डाउनवर्ड जो है, जो डॉर्सम है और नीचे जो एपिक्स है, ये एला है, ये सब बने होते हैं कार्टिलेज से, ठीक है। हाइलाइन कार्टिलेज है। बिलो द फ्रेमवर्क इज फॉर्म्ड ऑफ प्लेट्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। ये सारे हाइलाइन कार्टिलेज हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे कि ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज इन डिफरेंट the hyaline cartilages are named according to the different areas। वो हम बाद में इसमें डिस्कस करते हैं। Here you can see that how different cartilages and bones are present in your nose। ये nasal bone है, two nasal bone, one, two। Here is the nasal part of the frontal bone, and here is the frontal process of maxilla। ये तीनों bony parts हैं। These are the cartilages। This one is the lateral cartilage, lying laterally, so lateral cartilage one side, on another on the opposite side। In the center you are having septal cartilage। septum जो हमने बताया था कि दो nostrils को अलग करता है, डिवाइड करता है, so septal cartilage। अब आते हैं हमारे पास एलर कार्टिलेजेस, ठीक है। एला था ना, जो ये मोबाइल एरिया था, दिस वाज कॉल्ड एला। इसमें स्मॉल कार्टिलेजेस at the junction of the nose with the face, these are called lesser alar cartilages, lesser alar cartilages। और ये जो बड़ा वाला है, that is making the apex, this is called greater alar cartilage। lesser alar cartilage small, छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, दो छोटे छोटे। and the greater alar cartilages are these one, ठीक है। and the end of the ala, जो कि इस सल्कस के करीब करीब एरिया है, दिस इज फिल्ड विद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यहाँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द ब्लड सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल नोज। द स्किन ऑफ एक्सटर्नल नोज इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस ऑफ ऑफ्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी आर्टरीज, ठीक है। ऑफ्थेल्मिक वर्ड जो है वो आपको आई से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द आई, इसके साथ ये सारी ब्रांचेस हैं ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की। एंड मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो हेयर, ये सारा जो मैक्सिला का पोर्शन है उधर, ये सारी ब्रांचेस हैं आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी की, ठीक है। सो
The skin external nose की जो blood supply है that is through of branches of ophthalmic artery and branches from maxillary artery. The skin of the ala means ये वाला portion and the lower part of the septum, ये septum का जो lower मतलब जो lower areas those are nearer to the lips, ठीक है, ये वाला part जो है ये सारा ये lower part of the septum and the ala ये सप्लाई होते हैं फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस से, ठीक है। यहाँ से फेशियल आर्टरी जो है पास होती है तो वो यहाँ पे ब्रांचेस देती हैं टू द एला एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सेप्टम। सो एक्सटर्नल नोज में आपके पास तीन टाइप्स की आर्टरीज आ गई, ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रांचेस फ्रॉम फेशियल आर्टरी, ठीक है। ये ब्लड सप्लाई एक्सटर्नल नोज की। नर्व सप्लाई भी सेम, the infratrochlear and external nasal branches of ophthalmic nerve, ठीक है। This is the infratrochlear nerve and external nasal branch, ठीक है। external nasal branch है और infratrochlear, these are from ophthalmic nerve, ठीक है। and the infraorbital branch, this is the infraorbital branch from maxillary nerve. सो एक्सटर्नल नोज की सप्लाई में ब्लड सप्लाई में दो आर्टरीज हैं, थ्री आर्टरीज हैं बेसिकली, जो हमने पढ़ी थी ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस थी, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस थी और फेशियल आर्टरी की ब्रांचेस थी। अब जो इसकी नर्व सप्लाई है वो दो बेसिक नर्व से हैं, ऑफ्थेल्मिक नर्व की ब्रांचेस हैं और मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस हैं। ऑफ्थेल्मिक नर्व की कौन सी ब्रांचेस हैं? इंफ्राट्रॉक्लियर हैं और एक्सटर्नल नेजल है, ठीक है। दिस वन इज एक्सटर्नल नेजल और ये इंफ्राट्रॉक्लियर है। और इंफ्रा ऑर्बिटल जो है नर्व वो ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व की। सो दिस वाज एक्सटर्नल नर्व। अब हम आते हैं रीजन्स ऑफ द नोज के। दिस इज द 3D डायग्राम ऑफ जो नोज की इंटरनल रीजन्स हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स ऑफ डिविजन्स हैं इसमें। फर्स्ट वन इज नेजल वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल का जो एरिया है दैट इज दोज जस्ट इनसाइड टुवर्ड्स द नेजल कैविटी, जो बिल्कुल ही नॉस्ट्रल के करीब करीब जो एरियाज हैं, ठीक है, इंटरनली, उसको हम नेजल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ऑन द बैक ऑफ द नेजल वेस्टिब्यूल दिस ब्लूइश होल पोर्शन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रीजन। इसमें आपकी एक्चुअल जो एयर पैसेज है वो इधर होती है, ठीक है, हेयर from air enters from here the nasal vestibule goes towards the respiratory region having different areas। ये शेल्व्स भी हैं, ये क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ ब्लड सप्लाई है, यहाँ हेयर है जो कि ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, फॉरेन बॉडीज को, एंड देन थ्रू दीज विंडोज, ये दो विंडोज आपको नजर आ रही हैं हेयर, दीज आर पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स। पोस्टीरियर मीन्स बैक, नेजल मीन नोज, अपर्चर मीन्स ओपनिंग। सो नोज की बैक पे ये ओपनिंग है जो कि यहाँ फेरिंग्स होता है, नेजोफेरिंग्स, उसमें ये जाके ओपन होती है। सो नेजोफेरिंग्स के बाद डाउनवर्ड जो मैं आपको बताया था जाती है एयर टू द लोअर डाउन एरियाज, ठीक है। सो दिस ब्लूइश पोर्शन इज द होल रेस्पिरेटरी रीजन। नाउ व्हाट इज द पिंक पोर्शन जो कि इसी नेजल कैविटी का अपर पोर्शन है? दिस इज एक्चुअली द ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन मीन्स द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। जो दिस स्मेल का जो आपके सेंस है उसका जो बेसिक रीजन है दैट लाइज ऑन द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। ये नेजल कैविटी, ये इसका रूफ, दिस पिंक एरियाज, these are the olfactory region. Now nasal cavity, अब हम इसकी बाउंड्रीज की तरफ आते हैं। This is again a 3D diagram of the nose, nasal cavity. So nasal cavity has got floor, this one is the floor here, okay, ये फ्लोर है, this lower portion, इस फ्लोर के जस्ट बिलो दिस इज पैलेट, ओके। और इस पैलेट के नीचे आपका ओरल कैविटी होता है, जो माउथ का पोर्शन, इसमें टीथ वगैरह होते हैं सब है, वो यहाँ लाई करते हैं।
So nasal cavity has floor, roof, the lateral wall, the medial wall. The nasal septum is medial wall. ठीक है, अगर मैं आपको एक nasal cavity की बाउंड्रीज बताऊं तो वो इस तरह है, रूफ है, लेटरल वॉल है, मीडियल वॉल है, नेजल सेप्टम है। ठीक है, नेजल सेप्टम फॉर्म्स द मीडियल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी। सेम जो फोर वॉल्स हैं ये दूसरी तरफ नॉस्ट्रल में भी होगा। ठीक है, सो इसको एक राउंड सॉरी इसको एक रूम की तरह ले लें। This has got roof, this has got a lateral wall, then the room has got a partition dividing the room into two equal halves. That partition is the nasal septum, and the sidewise walls are lateral walls. The room has got floor, the room has got roof. So these are the boundaries of nasal cavity. Here, like this, for example, जैसे मैंने आपको पहले बताया, the air is entering from nostril, goes towards the respiratory region, and then through this posterior nasal aperture goes downward into the lower respiratory regions. Okay, now ये क्या चीज़ है, ये जो आप कहेंगे what are these things? These are the shelves like structure present on lateral wall. ठीक है, medial wall पे नहीं है। These shelves are present on the ये देखिए, आपको ये नजर आ रहा होगा ये डायग्राम में। These are the lateral walls, these are the lateral walls। ठीक है, उससे एक shelf like bony projections, these are actually bony projections, shelf like bony projections, these are called concha। और इन प्रोजेक्शंस के बीच में आपको ये नजर आ रहा होगा, लिखा होगा सुपीरियर मिएटस, मिडल मिएटस, इंफीरियर मिएटस। जब भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बट कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको बोलते हैं। द बोनी शेल्व्स आर कॉल्ड concha present on the lateral wall, and each between two concha you are having meatus। ठीक है, उस meatus की क्या इंपॉर्टेंस है बाद में पढ़ेंगे। सो दिस इज द फ्रंट, जो आपको एक पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, सेक्शन दिया हुआ इन्होंने। दिस इज पैलेट, इस पैलेट के नीचे आपकी ओरल कैविटी है, ये लेटरल वॉल है, दिस इज द मीडियल और सेप्टल वॉल, अगेन लेटरल वॉल, दिस इज द रूफ, दिस इज द फ्लोर। जो पैलेट है वो फ्लोर बनाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, जो मैंने अभी आपको बताया, जो पैलेट है, जो हार्ड पैलेट है, वो नेजल कैविटी का फ्लोर है। ठीक है, किन बोन से बना होता है? दिस स्मॉल ग्रीन, छोटा सा जो आपको ग्रीन बोन नजर आ रही है छोटी सी, दिस इज एक्चुअली पैलेटाइन बोन। और जो पर्पलिश नजर आ रही है, दिस इज द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, दिस इज द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, दिस इज पैलेटाइन बोन। टुगेदर these two bones form the floor of the nasal cavity together। okay, दोनों कंबाइन ही आपको बना के देते हैं फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके थे। दिस इज एक्चुअली हार्ड पैलेट, and you can see just below the hard palate you are having teeth, here you are having the mouth, opening of the mouth। okay, so ये nose है, this is the floor has got palatine bone and palatine process of maxilla। palate means palate से निकला हुआ है, hard palate से। ठीक है, so palatine process of maxilla। again this is the hard palate, see, hard palate, palatine process of the maxilla, this one, and this one is the palatine bone। so this is the floor of the nasal cavity। ये nasal cavity है, ये इसका रूफ है, ये पूरा। ठीक है, ये इसका फ्लोर था जो हमने ये पढ़ा था। the roof of the nasal cavity। now
Coming towards the roof, roof is narrow as compared to the floor. ठीक है, ये इसका रूफ है. Anteriorly means front पे, it is beneath the bridge, जो कि ये हमने bridge बोला था, ये वाले इस एरिया को, इसकी below it is formed by nasal and frontal bone. See, यहाँ से if you concentrate on this pointer from here to here, ये पूरा का पूरा रूफ है. So from anteriorly it is formed by nasal bones, frontal bone. In the middle you are having the cribriform plate of ethmoid bone. This is the cribriform plate of ethmoid bone. This is the ethmoid bone जो कि skull में present होता है, बाद में आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, उसका जो ये वाला पोर्शन है स्कल का, जो लोअर पोर्शन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन. एथमॉइड बोन है, उसकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है. दिस इज द मिडल पोर्शन ऑफ द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी. अब बैक पे जाएंगे तो हम आएंगे स्फिनॉइड बोन की तरफ. पोस्टीरियरली बाय द डाउनवर्ड स्लोपिंग बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन. ठीक है, एथमॉइड के बैक पे स्फिनॉइड बोन होता है. सो दिस इज स्फिनॉइड बोन. ठीक है, एंटीरियरली नेजल बोन, फ्रंटल बोन, मिडल में आपके पास है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, एंड पोस्टीरियरली द रूफ इज फॉर्म्ड बाय स्फिनॉइड बोन. स्फिनॉइड बोन. ठीक है, ना हमने दो पढ़ लिए. वी स्टडीड द फ्लोर, वी स्टडीड द रूफ. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द मीडियल वॉल, द सेप्टल वॉल. ठीक है, ये आपका सेप्टल वॉल है जो कि दोनों नॉस्ट्रल्स के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, सो दिस इज द सेप्टल वॉल. दिस इज द सेप्टल वॉल. ठीक है, ये सेप्टम है. इंटीरियरली जो है वो कार्टिलेज से बना होता है. पोस्टीरियरली दो बोन्स हैं हमारे पास. कौन कौन सी? द नेजल सेप्टम which divides the nasal cavity into right and left halves. ठीक है, it is an osseous means bony part and cartilaginous portion. ठीक है, so this one is the septal cartilage and these two are the bones. Nasal septum consists of perpendicular plate of ethmoid bone. जो ये मैं आपको बताया था कि ये पूरे ethmoid bone है, ये स्कल का पोर्शन था, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट थी. ठीक है, दिस वन. और इसकी बिलो जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन. और बैक पे ये वूमर. ठीक है, ये वूमर बोन है बैक पे. ठीक है, इंफीरियर सुपीरियरली परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन है जो बोनी पार्ट है, और इंफीरियरली वूमर बोन है. ठीक है, और एंटीरियरली आपके पास क्या आता है? सेप्टल कार्टिलेज. ये कार्टिलेज है, हाइलाइन कार्टिलेज का पोर्शन वो है, हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है. सो दिस इज सेप्टल कार्टिलेज. अगेन नेजल सेप्टम, ये पूरा जो हाईलाइटेड जो पॉइंटर मूव कर रहा है, दिस इज दी नेजल सेप्टम और मीडियल वॉल. These two bones, the orange one and the purple one, ठीक है, this is the perpendicular plate of ethmoid bone, vomer. These are bony parts of the nasal septum, and this one is the septal cartilage made up of hyaline cartilage. Now, the important one, that is the lateral walls of nasal cavity. Lateral wall of nasal cavity मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारी ये नेट लेटरल वॉल है. सी, ये बोनी, सारा बोनी बोनी पोर्शन है. मैंने आपको पहले बताया, आई टोल्ड यू दैट द लेटरल वॉल हैज गॉट थ्री प्रोजेक्शंस, बोनी प्रोजेक्शंस, 1 2 3. सो marked by three bony projections, these are called concha. So the concha lying upward is called superior concha. This one is the middle concha. This one is inferior concha. ठीक है, so nasal conchae, superior nasal concha, inferior nasal concha, superior nasal concha, middle nasal concha and inferior nasal concha. Okay, और पहले भी स्टडी कर चुके थे हम लोग कि the space between and space below each concha is called meatus. Here, this portion, see this arrow, this is meatus lying below this concha. Superior concha के नीचे है meatus, मिडल concha के नीचे है meatus, inferior concha के नीचे है meatus. ठीक है,
3 bony projections हैं, these 3, इन तीनों के बिलो कुछ एरिया है विच इज कॉल्ड मिएटाई, मिएटस, ठीक है, मिएटाई। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नाउ सी, ये अगेन एक डायग्राम है दैट इज शोइंग दी लेटरल वॉल। इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा एक रिव्यू दे देती हूँ, ठीक है। फ्लोर फॉर्म बाय दिस पोर्शन, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पेलेटाइन प्रोसेस, दिस इज फ्लोर, ठीक है, ये पूरा फ्लोर, ये रूफ, रूफ was made up of nasal bones, frontal bone, cribriform plate of ethmoid bone, sphenoid bone, ठीक है। और ये lateral wall है, lateral wall has got 3 projections, superior concha, middle concha, inferior concha, ठीक है। इनके बीच में सी सुपीरियर कॉन्का शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन बीच में एक ऐसे डीप एरिया है इसकी बिलो, मिएटस, इसकी भी नीचे एक डीप एरिया है मिएटस, इसकी नीचे भी एक डीप एरिया, दिस इज कॉल्ड मिएटाई। और बैक पे सी नेजोफेरिंक्स की तरफ जा रहा है, पोस्टीरियर नेजल अपर्चर है, दिस एरिया प्रोसीडिंग टुवर्ड द नेजोफेरिंक्स, यहाँ से एयर डाउनवर्ड जाती है। अगेन लेटरल वॉल, superior nasal concha, middle nasal concha, inferior nasal concha, इसकी बिलो ये superior meatus, middle meatus, inferior meatus. So we are coming towards the lateral wall of the nasal cavity। जो meatus हमने पढ़े थे उसके अंदर कौन कौन सी ओपनिंग्स है वो अब हम स्टडी करेंगे। So first of all inferior meatus, this is the inferior meatus lying between inferior concha and floor of the nasal cavity। So this is the inferior meatus। इसमें आप देख सकते हैं it is got opening of nasolacrimal duct। What is nasolacrimal duct? As the name suggests, naso means nose, lacrimal word is taken from lacrimal apparatus that is present in the eye, that is meant to secrete to form tears, ठीक है, जो आंसू बनाता है, that is nasolacrimal apparatus, sorry, that is lacrimal apparatus, and it has got a duct which comes from the eye to the nose, ठीक है। so उसकी opening जो है that is present below inferior meatus, uh, present in inferior meatus here। so when you cry you feel some secretions coming out of your nose, why? Because this nasolacrimal duct is meant to conduct or to carry some secretions from here from the eye towards the nose through this nasolacrimal duct। So inferior meatus has got opening of nasolacrimal duct। Now coming towards middle meatus, which lies between middle concha and inferior concha. Here it is called middle meatus। Middle meatus has got 4 openings: maxillary sinus, frontal sinus, anterior ethmoidal, and middle ethmoidal sinus, ठीक है। 4 opening, what are sinuses? You will have a separate lecture on paranasal sinuses, but briefly the sinuses are the mucous membrane lined structures present within the bone। what is the importance, why they are present, will be taught later on, ठीक है। but this maxillary sinus present in maxillary bone, frontal sinus present in frontal bone, anterior and middle ethmoidal sinus present in ethmoid bone। these 4 openings are present in middle meatus here। Middle meatus is lying between middle concha and inferior concha, so middle meatus has got 4 openings। Now superior meatus. Superior meatus lies between superior concha and middle concha. So this portion, the shelf-like portion, shelf-like projection is below the shelf-like projection. This
area, the space is known as superior meatus. It has got opening of posterior ethmoid sinus. एंटीरियर और मिडिल एथमॉइड साइनस ओपन हो गए मिडिल मीटस में. पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस जो है वो ओपन हो रहे हैं सुपीरियर मीटस में. ओके, नाउ अनदर थिंग, स्फीनो एथमॉइड रीसेस. ठीक है, ये हमारे पास एथमॉइडल बोन है, ये स्फीनॉइड बोन है. सो स्फीनो एथमॉइडल रीसेस, दिस एरिया, ये जो है, ठीक है, ये स्फीनो एथमॉइडल रिसेस इस सुपीरियर कॉन्का के ऊपर है. ठीक है, सुपीरियर कॉन्का के ऊपर एक एरिया प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड स्फीनो एथमॉइडल रिसेस. स्फीनो एथमॉइडल रिसेस, ठीक है, उसमें ओपनिंग है स्फीनॉइड साइनस की. ये स्फीनॉइड साइनस, ठीक है, उसकी ओपनिंग जो है वो स्फीनो एथमॉइड रिसेस में है. क्लियर? these are the openings into the nasal cavity. Anterior and middle ethmoidal cells, ठीक है, ये सारे इसमें अगेन ओपनिंग है. नेजोलैक्रिमल डक्ट इंफीरियर मीटस में, ये आपके पास है एंटीरियर एंड मिडिल एथमॉइडल एयर सेल्स मीन साइनसेस. मेजिलर और फ्रंटल साइनसेस में ओपन हो रहे हैं. ठीक है, पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनसेस जो हैं वो ओपन हो रहे हैं सुपीरियर मीटस में. एंड स्फीनो एथमॉइडल रीसेस, दिस एरिया जो सुपीरियर कॉन्का के ऊपर है, स्फीनो एथमॉइडल रीसेस, that is actually that has actually got the opening of sphenoid sinus. Now blood supply of the nasal cavity. Nasal cavity ये lateral wall की blood supply है और ये medial wall की blood supply है, मतलब septal wall की. ठीक है, so blood supply is from branches of maxillary artery, one of the terminal branches of external carotid artery. External carotid artery is running into the neck. In neck उसकी branch है मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी ब्रांचेस जो हैं वो सप्लाई करती हैं नोज को. और मैक्सिलरी आर्टरी की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है. ठीक है, सो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी सप्लाइज द nasal cavity. It anastomosis means the sphenopalatine artery anastomosis with the septal branch of superior labial branch of facial artery. ठीक है, ये superior labial branch है facial artery की. हेयर हेयर, ठीक है, सो वो जो है वो होती है एनास्टोमोस करती है, ये स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी है, दिस वन. ठीक है, जो इमर्ज हो रही है यहाँ से, स्फीनो पैलेटाइन आर्टरी कम्स डाउनवर्ड एंड एनास्टोमोस विद द septal branch from nasal septal branch of superior labial branch of facial artery हेयर. ठीक है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी की ब्रांच है. ठीक है, सो ये सारे आपस में मिलके एनास्टोमोसिस बनाते हैं on the lateral wall and here on the medial wall. Okay, the submucous venous plexus is drained by veins that accompany the arteries. And submucous means just below the mucous membrane within the nasal cavity. ये venous plexus होता है. ठीक है, vein से related venous plexus that is drained means ultimately जो deoxygenated blood उसने भी कहीं जाना होता है. so वो veins, वो सारी veins जो हैं वो corresponding arteries होती हैं. इन arteries के साथ साथ corresponding veins भी होती हैं. जिस नाम की artery होती है उसी नाम की vein भी होती है. clear? This is the maxillary artery, that is the branch of external carotid artery. It is giving this sphenopalatine artery. ठीक है, sphenopalatine artery which anastomose with the branch from the facial artery, the superior labial branch जो थी वो इसका मैच anastomose कर रही थी. Now something important you may have heard in your life may be Kieselbeck plexus. It is present in little area. You may have come across in your life
अब ऑफ द नेजल ब्लीडिंग, नोज की ब्लीडिंग हुई होगी, ठीक है, होती है अक्सर चिल्ड्रन में, एडल्टहुड में भी हो सकती है, ठीक है। दैट इज द एरिया प्रेजेंट ऑन द सेप्टल वॉल हियर, यहाँ पे इस एक्चुअली सेंसिटिव एरिया, इसमें बहुत ज़्यादा नेजल ब्लीडिंग की चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, हेयर द ब्रांचेस फ्रॉम ये जो किजल बैक प्लेक्सिस है वो इस लिटिल एरिया में प्रेजेंट होते हैं। प्लेक्सिस मींस नेटवर्क, ठीक है, कोई नेटवर्क है, वो इधर सारा सेप्टम जो है नेजल सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये किस चीज़ से बना होता है, ये एनास्टोमोसिस, ये जो प्लेक्सिस है ये कौन सी आर्टरी से बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी हेयर, ठीक है, ये एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, septal branch from the nasal artery from superior labial artery, septal branch from superior labial artery, greater palatine artery की branch है, septal branch from sphenopalatine artery, ठीक है। सो sphenopalatine artery है ये, एंड ये जो हमने पहले पढ़ा था कि sphenopalatine artery anastomosed with the septal branch from the superior labial artery, ये दोनों, this palatine artery एंड एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, ये सारे मिलके सेप्टम पे एंटीरियर लीनियर द वेस्टिब्यूल, इट फॉर्म्स अ किजल बैक प्लेक्सिस व्हिच इज कॉल्ड व्हिच इज प्रेजेंट ऑन दिस लिटिल एरिया, इसको बोलते हैं लिटिल एरिया, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिस्टेक्सिस, दैट मीन्स नेजल ब्लीडिंग एरिया जो है, ठीक है, नेजल ब्लीडिंग को एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी, दी ऑल्फैक्टरी नर्व्स मीन्स जो सेंस ऑफ स्मेल होती है, ठीक है, उसकी जो नर्व्स है फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन दैट वाज लाइंग ऑन द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, उसके ऊपर छोटे छोटे नर्व्स होते हैं विच असेंड थ्रू द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन टू ऑल्फैक्टरी बल्ब, जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की जस्ट ऊपर जो है एथमॉइड बोन में ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट होते हैं, उसकी तरफ ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो हैं वो असेंड करते हैं और वो उसमें सेंस ऑफ स्मेल लेके जाते हैं, ठीक है। एंड द नर्व्स ऑफ ऑर्डिनरी सेंसेशन, बाकी जो सेंसेशन है पेन टच वगैरह, वो लेके जाती है ब्रांचेस ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवीजन एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व इज अ क्रेनियल नर्व, उसकी दो डिविजन्स जो हैं ऑप्थेल्मिक एंड मैक्सिलरी, वो बाकी जो सेंसेशंस हैं नोज की नेजल कैविटी की वो कैरी करती हैं, बट द ऑल्फैक्शन के जो सेंस है दैट इज दोज आर कैरिड बाय olfactory nerves which ultimately go into the olfactory bulb present in the ethmoid bone. Here ये रूफ है, ठीक है, यहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, these are olfactory nerves, these are ascending in from the mucous membrane towards the cribriform plate of ethmoid bone and ultimately ending in this yellowish worm like structure, एक कीड़े की तरह स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन द एथमॉइड बोन, ठीक है, जस्ट अबाउट द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन हेयर, ये इसमें एंटर होती हैं कैरिंग द सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन। और बाकी जो सेंसेशन मैंने बताई वो है दीज आर कैरिड बाय, क्या हमने पढ़ा था, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन एंड मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ, जो है हमारे पास ऑफ्थेल्मिक डिवीजन और मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये उससे कैरी होती हैं। Now lymphatic drainage of the nasal cavity. The lymph vessels draining the vestibule and in the submandibular lymph nodes. जो वेस्टिब्यूल का पोर्शन है मीन्स जो ओपनिंग का पोर्शन है, ठीक है, वो ड्रेन होती है सबमेंडिबुलर नोड्स में, लिम्फ नोड्स में, और जो बाकी की नेजल कैविटी है, जो पोस्टीरियरली जितना भी नेजल कैविटी का पोर्शन है दैट इज ड्रेन्ड बाय द लिम्फ वेसल्स, वो जाती है अल्टीमेटली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जो नेक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो उसमें ड्रेन होती हैं। क्लिनिकली यू कैन एग्जामिन द नेजल कैविटी लाइक दिस, नेजल प्रॉन्ग्स होते हैं व्हेन यू विजिट द ईएनटी स्पेशलिस्ट,
So nasal prongs are inserted into your nose and inside the nasal cavity is examined. एनी ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा जो हुआ हो उसको एग्जामिन कर सकते हैं टू सी एनी इन्फेक्शन ऑफ द नेजल कैविटी, एनी फॉरेन बॉडी and nasal bleeding, epistaxis, that was caused by Kieselbeck plexus in the little's area. Clear? So this was all about today's lecture. Thank you.